Journey of 1,000 miles starts with a single step. منزل تک پہنچنے کے لیے کندھے سے کندھا ملاکر قدم آگے بڑھانے پڑتے ہیں. پاکستان کے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی اصل پہچان یعنی پاکستان کے نوجوان آگے بڑھیں اور پاکستان کے مسائل کا خود حل تلاش کریں. اسی مقصد سے نپسا کی ٹیم نے 20 ستمبر 2010 میں اپنے پہچان پاکستان ٹور کا آغاز کیا. ایک نئے دن کا آغاز ایک نئے سفر سے. اسلام آباد سے نپسا کے ٹیم ممبرز اپنے بہت محبتوں سے سجائے ہوئے فلوٹ کے ساتھ پشاور کی طرف روانہ ہوئے. یہ M1 کا سفر بھی کتنا پر لطف ہے. ہر طرف صبح کا اجالا اور کچھ کرنے کا جوش, دوستوں کا ہنسی مذاق اور آگے آنے والے سفر کی پلاننگ. اسلام آباد سے کب پشاور پہنچے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. پشاور میں داخل ہوئے تو IG خیبر پختونخوا کی طرف سے بھیجا ہوا سیکیورٹی اسکواڈ اور نپسا خیبر پختونخوا کے والنٹیئرز نے ہمیں ریسیو کیا. پشاور شہر میں داخل ہوئے تو سرحد کی غیور فضاؤں نے ہمیں اور ہمارے ارادوں کو ایک نیا جوش اور ولولہ دیا. وقت ضائع کیے بغیر ہم نے سی کوس کا رخ کیا, جہاں پر پختون مہمان نوازی ہمارے میزبانوں کے رویے سے صاف عیاں تھی. نپسا ٹیم کے پہلے سپیکر علی رضا نے اسٹوڈنٹس کو پہچان پاکستان کے مقصد کے بارے میں بتایا. مقصد کیا ہے اس ساری چیز کا؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 10 کروڑ لوگ 25 سال کی عمر سے کم کے ہیں. ایسے معاشرے کے اندر آپ کو ایک چینج کی ضرورت ہے, اور وہ چینج یہی 10 کروڑ سے نیچے جو نوجوان ہیں جو 25 سال سے کم عمر کے وہی لائیں گے. اسی لیے ہم یہاں پر آج آئے ہیں. ہم نے آپ کو یہ فارم دیے ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اکثر ہم ایسے فارم جہاز بنا کر اڑا دیا کرتے تھے. آپ خدا را ایسا نہ کیجیے گا, آپ ان کو ضرور فل کریں. ان کے اندر جو پرٹیکولرز ہیں. منیب اور عمار نے نوجوانوں کی ملکی تعمیر و ترقی میں کردار پر بات کی. ان سب کی نمائندہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک کوشچن اینڈ آنسر سیشن بھی ہوا. ہماری کوششوں اور کاوشوں کے وہاں کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی نے کچھ اس طرح سراہا. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے سی کوس یونیورسٹی کو چوز کیا اور یہاں پر آپ آئیں. بیسیکلی اس طرح کی ایک آرگنائزیشن سے ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت رہی ہے. یہ آرگنائزیشن جیسے ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا, باقی آپ ہمارے فنکشن میں ڈسکس ہوا اس کا رول. بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ نان پولیٹیکل ایک آرگنائزیشن ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہوگی جو کہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس ہی کے بارے میں بات کرے گی. ایک تھکا دینے والے لیکن پرجوش انٹریکٹیو سیشن کے بعد ہم نے پشاور میں اپنی بیس یعنی اپنے گیسٹ ہاؤس کا رخ کیا. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہماری نپسا ٹیم نے IM سائنسز کا رخ کیا. IM سائنسز میں بھی ہمیں سی کوس کی طرح اسٹوڈنٹس نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا. یوں تو یہ انسٹیٹیوٹ پشاور میں واقع ہے, لیکن یہاں کی فیسلٹیز قابل ستائش ہیں. یہاں پر ہم نے ملک کے نامور ٹی وی اینکر طلعت حسین کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنا پروگرام لائیو وتھ طلعت ہمارے ساتھ ریکارڈ کروائیں. مشکل میں سے ہی, کیونکہ اگر حالات آسان ہو تو آپ کو لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے. طلعت نے پہچان پاکستان کاروان میں ہمیں جوائن کر کے ملکی صورتحال, ملک میں سیاسی رویوں اور نوجوانوں کے کردار پر اسٹوڈنٹ سے بات کی. طلعت کے آنے سے اسٹوڈنٹس کا جوش و جذبہ قابل دید تھا. نپسا کا جو کام ہے پہچان پاکستان کے نام سے, پہلے تو میں ان کے سلوگن سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے ہر پاکستانی کے دل میں ایک آواز اٹھ جاتی ہے کہ یار کچھ کرنا ہے ابھی. 21 ستمبر 2010 پہچان پاکستان ٹور کے دوسرے دن ہم نے پشاور کے مصروف شہر میں انٹرنیشنل پیس ڈے پر اپنے پہچان پاکستان کاروان کو مزید آگے بڑھایا. انٹرنیشنل پیس ڈے کا آغاز ہم نے ایڈورڈ کالج کے وزٹ سے کیا. ایڈورڈ کالج کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان تاریخ کے اوراق سے گزر رہا ہو. یہاں پر ہمارے قائد کی باتوں کی گونج ہے, یہاں ہمارے قائد کے قدموں کی چاپ ہے. تو پھر ہم یہاں آئے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ یہ تعلیمی ادارہ برٹش ایرا میں 1836 میں بنایا گیا. ایڈورڈز کالج کو بر صغیر پاک و ہند کی کئی نامور شخصیات جن میں سر سید احمد خان, علامہ اقبال, قائد اعظم,
गांधी जी, नेहरू और कई हेड ऑफ स्टेट्स शामिल हैं विजिट कर चुके हैं। एडवर्ड कॉलेज में मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए हम इसका मवाजना इंग्लैंड में मौजूद इंस्टीट्यूट से कर रहे थे, और यकीन जानिए एडवर्ड्स कॉलेज किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कम नहीं। एडवर्ड्स कॉलेज में 150 से ज़ायद का मजमा मौजूद था। ये स्टूडेंट्स बहुत बोल्ड होने के साथ साथ मुल्की सियासत पर बहुत फिक्रमंद भी थे और बहुत बाखबर भी। एक्सट्रीमिज्म दुनिया के हर कोने में होता है, आपको हर किस्म का इंसान मिलेगा, कातिल मिलेगा, डाकू मिलेगा, चोर मिलेगा। एक्सट्रीमिज्म इज एन आइडिया। बाहर देखते हैं ठीक है, तो हम अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं, लीडर मिल नहीं रहा क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए ठीक शायद वो पाकिस्तान उठाने के चक्कर में। ऐसे हालात में जब सोल्यूशन देखने को आते हैं ठीक है, तो फिर ऐसे लोग सामने आते हैं। हमने एडवर्ड्स कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की। उन्होंने हमारी काविशों को बहुत सराहा और मुस्तकबिल में नप्सा के टीम मेंबर्स को खुले दिल से आने की दावत भी दी, जो हमारे लिए बहुत हौसला अफजा थी। This morning session organized by Edwards College with the help of NAPSA, it was a wonderful morning, and I feel that if we have more of such interactions, students, they'll learn, they'll get closer, people from around the country, they'll get closer, and that would be the strength of not only the students, but that would be the strength of the future of this country. As such, we have a lot of talent around here, but unfortunately our students in particular from this area, they are not exposed to such activities and such events. So for the sake of that exposure, I think it would be a kind of a request to NAPSA to have more and more of such events right here. The college is always open, you are always welcome, and then we can always be of whatever help that the college can sort of lend to you, it will always be there. एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर के बाद हमने फास्ट यूनिवर्सिटी पेशावर का दौरा किया। यहाँ पर मौजूद नप्सा वॉलंटियर्स और एक स्टूडेंट्स के बड़े क्राउड ने हमें रिवायती तरीके से वेलकम किया। फास्ट यूनिवर्सिटी की तकरीब अली रज़ा ने इकबाल की शायरी से शुरू की। गुज़िश्ता रोज़ की तरह यहाँ पर भी हमें तलत हुसैन ने ज्वाइन करना था। तलत ने अपने शोला बयां अंदाज से न सिर्फ हाजरीन के दिल जीत लिए, बल्कि नप्सा का मौक़िफ़ स्टूडेंट्स को समझाने में बहुत मदद की। जो इवेंट था, जो आई फील लाइक कि हम दोबारा पैट्रियाटिक हो गए हैं। जो हमारे अंदर वो एक सॉर्ट ऑफ पैट्रियाटिज़म डीएक्टिवेट हो गई थी, वो दोबारा एक्टिवेट हो गई है। सो आई एम फीलिंग रियली गुड टुडे कि आज मुझे लग रहा है आई एम अ ट्रू पाकिस्तानी एंड यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई एम सो अप्रिशिएटिंग यू गाइज। नप्सा ने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है, और पेशावर के अंदर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कुछ हो रहा है। पूरे नेशन में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा हो रहा है कि सब पूरी जो हमारी यूथ है एक साथ बैठ के हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव भी बहुत बातें बीच में आई हैं, पॉजिटिव भी बहुत थी, लेकिन जो मेजर आउटकम था वो तो बहुत पॉजिटिव निकला है। और इससे यही अच्छा हमें पता चल रहा है कि हमारी यूथ पावरफुल है और हम लोग आगे बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं यूथ के थ्रू। फास्ट के तमाम स्टूडेंट्स ने पहचान पाकिस्तान कैंपेन को बहुत पसंद किया। फास्ट से अपनी एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद हमने अपने गेस्ट हाउस जाकर पैकिंग की और निकल पड़े एबटाबाद की जानिब। 22 सितंबर 2010 पेशावर में यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद हम गुज़िश्ता रात एबटाबाद ही आ गए थे। यहाँ की ख़ास बात यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। आर्मी का मशहूर कैडेट कॉलेज ताकूल भी यहीं पर वाक़ है। पहचान पाकिस्तान कारवान को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट एबटाबाद का विज़िट किया। एबटाबाद देखने में एक छोटा शहर लगता है, लेकिन सिर्फ कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट में तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। एक मुख्तसर वक्त में स्टूडेंट के साथ एक अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा। हमने अपने मकासद, अपने ख्वाबों और नप्सा के साथ नौजवानों के रोल पर जोर दिया। हमने अपने मुस्तकबिल के मकासद, नप्सा की आइडियोलॉजी और नौजवानों के साथ नप्सा के मुस्तकबिल पर जोर दिया। कॉमसैट्स के स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने हमारे मकसद और काविशों को कुछ इन अल्फाज में सराहा। पहचान पाकिस्तान का जो सेशन था आज बड़ा फ्रूटफुल था। उसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन, जो पहचान पाकिस्तान की टीम है, नप्सा की टीम है और हमारे जो स्टूडेंट्स की टीम है, जो पार्टिसिपेंट्स थे, मेरा ख्याल है काफ़ी फ्रूटफुल था, काफ़ी मोटिवेटिंग था। और होपफुली इंशाल्लाह बाय जो ये सेशन जब ख़त्म हो चुका है और इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को उसकी इनपुट मिल जाएगी और लोग एक्टिवली जिस एजेंडा को आप लेके आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट एबटाबाद से फारिग होने के बाद हमने अयूब मेडिकल कॉलेज का रुख किया।
इस तालीमी इदारे से डॉक्टर्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और यही लोग सही मानों में पाकिस्तान की पहचान हैं। अयूब मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने नप्सा के टीम मेंबर्स को मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की तायीद की। अयूब मेडिकल कॉलेज की खास बात यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स का कायम करदा फ्लड रिलीफ सेल था। अयूब मेडिकल कॉलेज की इन वॉलंटियर से मिलना नप्सा की आइंदा होने वाली फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज की वजह से बहुत जरूरी था, ताकि मुस्तकबिल में इन्हीं वॉलंटियर्स के साथ मिलकर नप्सा के वॉलंटियर्स अपने हमवतनों की मदद कर सकें। अयूब मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स ने हमें अपनी फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज के बारे में आगाह किया। अयूब मेडिकल कॉलेज से फरागत के बाद हमने फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन तो ना हो सका, लेकिन फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने हमारी सोच और साबित कदमी की तारीफ की और मुस्तकबिल में फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज दोबारा विजिट करने की दावत भी दी। एबटाबाद से फारिग होने के बाद दोपहर की छनती धूप में हम दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए एक मुश्किल सफ़र के बाद गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट पहुँचे। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट हम वहाँ के रेक्टर डॉक्टर जहांगीर बशर की खुसूसी दावत पर गए। डॉक्टर जहांगीर अपने स्टाफ के हमरा हमारे मुंतज़िर थे। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट जाने का अव्वलीन मकसद पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के सफ़े अव्वल के तालीमी इदारे का बनफ़से नफीस दौरा करना था, ताकि हम ये जान सकें कि दौरे हाजिर के टेक्नोलॉजिस्ट पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या राय रखते हैं और वो मसाइल में घिरे मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के ज़हीन तलबा और तलबात के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ, जिसमें उन्होंने हमसे कई सवाल पूछे। अपना मकसद बयान करते हुए नप्सा की टीम ने वहाँ की मैनेजमेंट के दिल जीत लिए। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट ने हमारी पहचान पाकिस्तान कैंपेन को बहुत सराहा और अगला यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट में मुनक्कद करवाने की दावत भी दी। आई रियली अप्रिशिएट वट एवर दे आर डूइंग। और आज भी जो GIK इंस्टीट्यूट में जो सेशन हुआ है और इंटरेक्ट किया है इन्होंने GIK के स्टूडेंट से और उनकी क्यूरीज़ के आंसर दिए, उनके जो माइंड में उनके दिमाग में जो चीज़ें क्लियर नहीं थी उनको क्लियर किया है। आई थिंक अ ग्रेट एफर्ट बाय नप्सा। एक तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद रात गए हमने अपने शहर इस्लामाबाद का रुख किया। खुश आमदीद और सुबह बखैर। वक्त है कि मैं आपको मिलवाऊं अपने 3 ऐसे नौजवानों से जिनमें आपको बताया है बड़े 23 सितंबर 2010 का आगाज नप्सा की टीम ने ATV के मॉर्निंग शो मॉर्निंग विद फरा के साथ किया। नप्सा की टीम को शो की होस्ट फरा हुसैन ने खुसूसी तौर पर दावत पर बुलाया था। इस प्रोग्राम के जरिए हमने पूरे पाकिस्तान में लोगों को नप्सा की अचीवमेंट्स और ऑब्जेक्टिव से आगाह किया। लाइव टेलीफोन कॉल्स और SMS मैसेज से हमें लोगों का हौसला अफजा फीडबैक मिला। ATV में मॉर्निंग शो के बाद नप्सा टीम ने रिफा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दौरा किया। पेशावर रोड पर वाक़े ये तालीमी इदारा मेडिकल और मीडिया साइंसेज की तालीम में काफ़ी नामवर है। यहाँ के प्रिंसिपल से बातचीत के बाद हमने स्टूडेंट्स के साथ एक मुलाकात की। यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद ने हमारे साथ आइडियाज़ शेयर किए। रिफा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नप्सा के टीम मेंबर अली अमीन ने नौजवानों के आगे बढ़कर मुल्क की तकदीर बदलने पर जोर दिया। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो आर्ग्यू इसी बात पे करते हैं कि हम लोग इस्लाम अपने रिलीजन को लेके नहीं चल रहे बल्कि पैट्रियोटिज्म को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के फीडबैक और सजेशंस ने हमारे हौसले और पुख्ता कर दिए। यहाँ की स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन की शमूलियत पर जोर दिया। नप्सा की टीम ने इन स्टूडेंट्स को यकीन दहानी करवाई कि आइंदा होने वाली यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में इस मौजू पर खुसूसी डिस्कशन करवाई जाएगी और अरबाब इख्तियार को ख़वातीन की फलाह बहबूद पर काम करने के लिए ख़ास सिफारिशात भी दी जाएंगी, ताकि आगे आने वाली क़यादत ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी कर सके। I hope that these guys they are not like the other communities which get up after disasters and they go to sleep, but they are before that disasters, and I hope that we help our country to get out of this, and I hope to become a part of it, and we hope to make a better Pakistan out of it. Thank you.